ધોરણ 3 પાઠ 7 નિરાલી પોશાક। આ પાઠનું નામ છે નિરાલી પોશાક। પોશાક એટલે કે કપડાં, નિરાલા એટલે કે સરસ। આપણે આ પાઠ સમજશું એટલે આપણને ખબર પડશે। ચલો પાઠની શરૂઆત કરીએ। गोल मोटल राम किसी देश का सबसे बड़ा आदमी था। હવે આ ગોલ મોટલ રામ છે એ જો બાજુમાં ચિત્ર આપ્યું છે એ રામની અહીંયા વાત કરવામાં આવી છે। કોઈ એક દેશનો ખૂબ જ મોટો આદમી એટલે કે માણસ હોય છે। वह नारियल के पेड़ से भी ऊंचा और बरगद के पेड़ से भी चौड़ा था। હવે નાળિયેરનું પેડ આપણે બધાએ જોયો છે, નાળિયેરી જ્યાં થાય છે ને દરિયા કિનારે, બરાબર। આ માણસ એવો હતો કે એ નાળિયેરના પેડથી નહીં ઊંચો અને બરગદનું પેડ છે એના કરતાં પણ વધારે પહોળો હતો। गोल मोटल राम काका महल की साफ सफाई करना था। હવે આ જે ગોલ મોટલ રામ છે એ શું કરતો હતો કે મહેલ હોય બરાબર ન્યાય પોતે સાફ સફાઈ છે એનું કામ કરતો હતો। उसे ऊंची ऊंची खिड़कियों को भी साफ करने के लिए कभी सीढ़ी की ज़रूरत नहीं पड़ती। આ ગોલ મોટલ રામ છે એટલી બધો ઊંચાઈવાળો હતો કે ઘરની એની જે મહેલની બારી હતી એને સાફ કરવા માટે પણ એને ક્યારેય સીડીની જરૂર પડતી નહીં। एक दिन ऐलान हुआ कल राजकुमारी का विवाह है, सभी लोग विवाह में जरूर आए। હવે રાજમહેલ હોય એમાં આ ગોલ મોટલ રામ છે એ કામ કરતો હોય છે। એમાં એક દિવસ છે ત્યાં એલાન થાય છે કે આવતીકાલે રાજકુમારી છે એના લગ્ન છે, બધા લોકો છે એ આ લગ્નમાં જરૂર આવે। गोल मोटल राम सोचने लगा राजकुमारी के विवाह में पहनने के लिए मेरे पास भी नए कपड़े होने चाहिए। આપણે કેમ લગ્નમાં જવું હોય તો નવા કપડાં પહેરીને એમ હવે આજે ગોલ મોટલ રામ છે એને પણ વિચાર આવે છે કે આવતીકાલે તો રાજકુમારીના લગ્ન છે, જો એના લગ્નમાં મારે જવું હોય તો મારે પણ નવા કપડાં પહેરવા જોઈએ। सबसे पहले मैं हेट खरीद लूँ। બરાબર। હવે સૌથી પહેલાં એ શું વિચારે છે કે હેટ એટલે શું તો કે હું સૌથી પહેલાં છે એ ટોપી છે માથાની એ લઈ લઉં। गोल मोटल राम ने सोचा और हेट की दुकान पर पहुंच गया। હવે ગોલ મોટલ જ્યારે ટોપી લેવાનું વિચારે છે એટલે એ ખરીદવા માટે ટોપીની દુકાને જાય છે। उसने लंबी हेट, छोटी हेट, काली, भूरी और लाल हेट सबको पहनकर आजमाया, लेकिन वे सभी उसके लिए बहुत छोटी थी। બધા કલરની ટોપી જોવે છે, નાનકડી, મોટી, કાળા રંગની, ભૂરા રંગની, લાલ રંગની, બધા રંગની ટોપી જોવે છે, પરંતુ એનું માથું જેવડું મોટું હોય છે કે એને એક પણ ટોપી છે એ થતી નથી। गोल मोटल राम ने सोचा अब वह जूते की दुकान में गया, लेकिन सभी जूते उसके लिए बहुत छोटे थे। હવે શું વિચારે છે કે લા હું બૂટ જોઈ લઉં, તો બૂટ જોવા જાય છે ત્યાં પણ એને કોઈ બૂટ છે એ થતા નથી। જુદે भी नहीं मिले, એને બૂટ છે એ પણ મળતા નથી। कम से कम नए कपड़े तो खरीद लूँ। હવે ગોલ મોટલ રામ વિચારે છે કે મને ટોપી ન મળી, પછી બૂટ ન મળ્યા, તો હવે હું મારી માટે નવા કપડાં તો લઈ લઉં। गोल मोटल राम उदास होकर मन में बोला। कपड़े की दुकान में उसने रेशमी कमीज़ें, चौड़े पाजामे और पतलून आजमाए, वे भी उसके लिए बहुत छोटे थे। ત્યાં પણ કપડાવાળાની દુકાનમાં જાય છે, ત્યાં પણ પેન્ટ શર્ટ બધું જોવે છે, પરંતુ એના માપનું એને કાંઈ મળતું નથી। महाशय आप दर्जी के पास क्यों नहीं जाते, वह आपके लिए नए कपड़े सिल देगा। दुकानदार ने सुझाव दिया। હવે જ્યાં કપડાં લેવા જાય છે ત્યાં દુકાનદાર એને એક સુઝાવ એટલે કે એને કહે છે કે મહાશય એટલે કે ભાઈ તમે છે એ દરજી પાસે જાઓ, તમને દરજી છે એ તમારા માપના કપડાં છે એ જરૂર સીવી આપશે। अब गोल मोटल राम दर्जी के पास पहुंच गया। હવે ગોલ મોટલ રામ છે એ શું કરે છે નવા કપડાં સીવડાવવા માટે દરજી પાસે પહોંચી જાય છે। દરજી નાપ લેને કે લીએ સીધી પર ચઢ ગયા। હવે આ આટલો બધો લાંબો હોય છે એટલે દરજી શું કરે છે કે ગોલ મોટલ રામનું માપ લેવા શું કરે છે સીડી ઉપર ચડી જાય છે। જો સબસે લંબી સીડી थी वह उसके घुटनों तक ही પહોંચી। હવે એવું થાય છે જો તમને ચિત્રમાં દેખાય જ છે કે આ માણસ એટલો બધો લાંબો હોય છે, એની પાસે એ સીડી લગાવે છે તો એના ઘૂંટણ એટલે કે એના ગોઠણ સુધીનો જ આ સીડી છે એ પહોંચે છે। आप कुछ ज़्यादा ही लंबे है, दर्जी કહે છે કે તમે તો કંઈક વધારે જ લાંબા છો।
दर्जी ने शिकायत की। दर्जी छे ये पोते कहे छे कि तमे तो वधारे पड़ता लांबा छो, मैं आपके लिए नए कपड़े नहीं बना सकता क्योंकि मैं आपका नाफी नहीं ले पा रहा हूँ। बराबर। हवे दर्जी छे ए पण कहे छे कि हूँ पण तमारा कपड़ा छे ए सीवी शकीश नहीं कारण के हूँ तमारुं माप छे लई शकतो नथी। गोलमोटल राम पेड़ के नीचे उदास बैठ गया। हवे गोलमोटल राम छे बधा लोको एने नवा कपड़ा नहीं मळता, बूट नहीं मळता, टोपी न मळी एना मापनी એટલે गोलमोटल राम छे तो खूब ज उदास थई जाय छे अने एक झाड़ होय छे एनी नीचे बेसी जाय छे। तभी एक टोकरी वाला कई तरह की टोकरियाँ लिए उसके पास से गुजरा। हवे ई ज्यारे झाड़ नीचे बैठो होय छे त्यारे घणी बधी टोकरी एटले के जे ओली टोपली जेवुं आवे ई न्याथी एक माणस छे लईने पसार थाय छे। रुको रुको गोलमोटल राम चिल्लाया એટલે ઊભા રહ્યો એવું गोलमोटल छे ए राडू पाड़े छे। मुझे एक ऐसी टोकरी दो जो सबसे बड़ी हो। हवे गोलमोटल राम छे टोकरी वाळाने शुं कहे छे कि मने कंईक एवी टोकरी एटले एवी टोपली आपो कि जे सौथी वधारे लांबी होय। जरूर। टोकरी वाले ने लाल और पीले फूल वाली एक सुंदर सी गोल टोकरी छांट कर दी। हाँ ले ओला छे जे टोकरी वाळो ई शुं करे छे कि लाल अने पीळा रंगनी जे एक मोटामां मोटी टोपली हती एने आपे छे। यह टोकरी मेरे लिए हेटका काम करेगी। हवे गोलमोटल राम कहे छे कि आ टोपली छे ए मारा माटे टोपीनुं काम करशे। गोलमोटल राम ने टोकरी सिर पर रखते हुए कहा। अब गोलमोटल राम ने नाव वाले को नदी किनारे इंतजार करते देखा। हवे शू करे छे कि नदी किनारे जे नाव एटले के जे होड़ी चलावा वाळो माणस होय एने जोवे छे। उसे एक तरकीब सूझी। हवे गोलमोटल राम छे एने एक आइडिया हवे छे। वह उनके पास जाकर बोला, क्या आप अपनी 2 नावें मुझे बेच सकते हैं? हवे आ शू करे छे गोलमोटल राम ई न्या होड़ी चलावा वाळो माणस हो एनी पासे जाय छे अने कहे छे कि शुं तमे मने 2 होड़ी छे ए वेची शकशो? तुम हमारी नाव का क्या करोगे? हवे जे ओलो होड़ीनो मालिक होय छे कहे छे कि तमे छे आ होड़ीनुं शुं करशो? नाव वाले ने पूछा। जरा ठहरो और देखो, गोलमोटल राम ने उत्तर दिया। गोलमोटल राम छे ई कहे छे कि तमे ऊभा रह्यो ई के हूँ तमने जवाब आपूँ। उसने अपने पुराने जूते उतार फेंके और पैरों में एक एक नाव पहन ली। हवे शू करे छे कि एना जे पगमां शू करे छे कि जे जूना चप्पल हता बूट हता ई फेंकी दे छे अने 2 पगमां एक एक होड़ी छे ई पहेरी ले छे। जो अमने चित्रमां देखाशे। बहुत आरामदायक है, वह खुश होकर बोला और नाव वालों से 2 नाव खरीद ली। एने ई खूब ज आरामदायक लागे छे એટલે એના પગમાં ई फिट थई जाय छे अने ई खूब ज ये 2 नाव पैसा छे या नाववाड़ा पासेथी खरीदी ले छे। अब उसे ज़रूरत थी तो नए कपड़े की। हवे एने शेनी ज़रूरत थी? कपड़ानी। उसने पंडाल बाबा को देखा जो रंग बेरंगी तंबू बनाकर लगा रहा था। हवे एक माणस ने जोवे छे जे रंग बेरंगी तंबू छे बनावतो होय छे। आहा, गोलमोटल राम बोला, क्या आपके पास एक तंबू मिलेगा? हवे गोलमोटल छे या तंबूवाड़ा पासे जाय छे अने कहे छे कि शुं मने एक तंबू मळशे? जरूर, तंबू बनाने वाला बोला और उसे तंबू दे दिया। हवे तंबू छे ई शुं करे छे? तंबू बनावा वाळो माणस छे याने तंबू आपी दे छे। गोलमोटल राम ने वह तंबू लेकर पहन लिया। हवे गोलमोटल राम छे या तंबू पहरी ले छे। कितना खुश था वह। अब वह निराली पोशाक में सबसे अधिक रंग बेरंगी मेहमान था राजकुमारी के विवाह में। आखा लग्न में सौथी वधारे रंग बेरंगी पोशाक वाळुं कोई माणस होय तो कोण हतुं? गोलमोटल राम। आ पाठ उपरथी संदेशो शुं मळे छे? सूझबूझ से बड़ी परेशानी का भी हल निकाला जा सकता है। जो आपणे बुद्धिनो उपयोग करीए तो आपणा जीवनमां गमे एवी मोटी मुश्केली आवे तो पण आपणे एमनो सामनो छे ई आसानीथी करी शकीए छीए।